Very good evening, my dear students. Today we will be learning about the front office. We should start the chapter called front office. Okay, this is a very crucial and a very important topics or important subjects. As you know, in the first semester, you have already discussed the importance of the front office department. Okay, as service are actually there after the parts, the service is actually there after the guest will come in the hotel. But how the guest will come in a hotel, how the guest will come, the guest have to face the front office department on proper manner. Guest has to face the front desk, and guest has to face the dedicated process of the guest reservation, the dedicated process of reservation. Okay, that the guest has to face. Dedicated process of reservation. Without a reservation or without front office, a guest cannot enter in the hotel. To enter in the hotel, guest should visit the reservation department, guest should enter in the reservation department, guest should talk through the reservation department, and guest should be there always. Guest should be there for what? Guest should be there at the front desk before they come to the hotel or come to the room for actually सर्विस. ओके, टू गेट द सर्विस. तो सर्विस देने से पहले गेस्ट को यू नीड टू हैव द रिजर्वेशन विथ यू. यू नीड टू हैव द रिजर्वेशन. तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ ऑल अबाउट योर फ्रंट ऑफिस एंड दैट इज़ ऑल अबाउट रिजर्वेशन. Okay, how the reservation is happened, what is the what does the reservation department do actually, what is the importance of reservation, the various aspects on reservation we'll discuss. It will defining reservation. What is a reservation actually? Reservation in the hotel industry is defined blocking a particular type of room. Example, single room, double room, deluxe room, executive room, suite. You know what are the types of room for definite duration of the time, that is down number of day for a particular guest. Reservation is actually blocking a particular type of guest room for a particular period of time. Okay, for a particular guest. So reservation is basically blocking a particular room. कोई भी एक पर्टिकुलर रूम को, चाहे वो सिंगल रूम हो, चाहे वो डबल रूम हो, चाहे वो ट्रिपल रूम हो, चाहे वो क्वाड रूम हो, चाहे वो स्वीट रूम हो, कोई भी एक पर्टिकुलर रूम को कुछ निर्दिष्ट कुछ दिन के लिए ब्लॉक करने को हमको बोला जाता है रिजर्वेशन. दैट इज़ अ रिजर्वेशन. ओके, blocking the rooms actually for a specific period of time, that is actually called as reservation. Okay, now let's check the importance. Why reservation is important, or why reservation is very much important for a hotel? Why the reservation is important for a hotel? What is the purpose? What is the functions? What is the importance of reservation for a hotel? What is the importance of the reservation for hotel? होटल के लिए क्या इंपॉर्टेंस है? गिव द फर्स्ट इम्प्रेशंस ऑफ द होटल टू द गेस्ट. गिव द फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ द होटल टू द गेस्ट. सबसे फर्स्ट इम्प्रेशन जो है होटल को, मैंने गेस्ट को मिलता है होटल का. ठीक है, होटल का फर्स्ट इम्प्रेशन मिलता है. फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन. मतलब रिजर्वेशन तभी पॉसिबल होगा. ठीक है, रिजर्वेशन का जो आदमी होगा उससे बात करने के बाद गेस्ट को पॉसिबल होगा, और गेस्ट को होटल के बारे में आइडिया हो जाएगा कि वो होटल होता कैसा है और वो होटल है कैसा.
ठीक है। तो फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ द होटल टू द गेस्ट, ठीक है, ये पहला इंफॉर्मेशन दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेल्स द मेन प्रोडक्ट ऑफ द होटल एंड एकोमोडेशन, दैट इज़ एकोमोडेशन। आपको बता दें होटल का 70% जो रेवेन्यू आता है दैट इज़ फ्रॉम रिजर्वेशन ओनली, ठीक है। होटल का 70% जो रेवेन्यू अर्निंग होता है दैट इज़ ओनली थ्रू द रिजर्वेशन, ठीक है, रूम जनरली। तो होटल का जो मेन बिजनेस है द रूम, सेलिंग द रूम, वो करता है रिजर्वेशन। जेनरेट द कस्टमर फॉर अदर डिपार्टमेंट, मैंने अभी तुरंत ये चीज़ ही डिस्कस की है कि अगर होटल में गेस्ट आएगा ही नहीं तो आप सर्विस किसको करोगे, आप खाना किसके लिए बनाओगे। तो रिजर्वेशन है, इसीलिए होटल्स में जो है गेस्ट आ रहा है, और इसीलिए आप दूसरे डिपार्टमेंट के लिए रेवेन्यू को जनरेट कर पा रहे हो, है ना। आप दूसरे डिपार्टमेंट के लिए जो है आप रेवेन्यू को जो है जनरेट कर पा रहे हो, क्योंकि आपके पास गेस्ट आ रहा है, इसीलिए यू आर जनरेटिंग रेवेन्यू फॉर द अदर डिपार्टमेंट। प्रोवाइड इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन टू द अदर डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट का इंफॉर्मेशन है आपको उसको देना है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ रिजर्वेशन फॉर द होटल क्या है, होटल के लिए आप क्या इम्पोर्टेंट रिजर्वेशन और होटल के लिए क्या इंपॉर्टेंस आप कैरी कर रहे हो। गिव द फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ द होटल टू द गेस्ट, होटल में फर्स्ट इम्प्रेशन जाता है, ठीक है, कि मैंने होटल के बारे में फर्स्ट इम्प्रेशन जो है गेस्ट का जाता है। सेल्स द मेन प्रोडक्ट, मैंने पहले ही बताया कि होटल का 70% रेवेन्यू जो है वो रूम सेलिंग से आता है। तो रूम को सेल कौन करता है, रिजर्वेशन डिपार्टमेंट। जेनरेट कस्टमर्स फॉर अदर डिपार्टमेंट, अगर आप रिजर्वेशन नहीं करेंगे तो गेस्ट अंदर होटल के अंदर ही पहुंचेगा नहीं, तो स्पा में बिजनेस कैसे होगा, F&B में बिजनेस कैसे होगा, बैंक्वेट में बिजनेस कैसे होगा। लेकिन उसको लाने के लिए रिजर्वेशन का इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइड इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन टू द अदर डिपार्टमेंट, अदर डिपार्टमेंट के लिए रेवेन्यू जनरेट के लिए मैनेजमेंट का इंफॉर्मेशन करवाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ द रिजर्वेशन फॉर द गेस्ट, अभी गेस्ट के लिए कैसा इंपॉर्टेंस है, ये तो गया होटल के लिए, होटल को रेवेन्यू देता है, अदर डिपार्टमेंट का रेवेन्यू अर्न करवाता है, मेन प्रोडक्ट को सेल करता है, फर्स्ट इंप्रेशन देता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन देता है। इसके अलावा और क्या करता है, व्हाट डज द रिजर्वेशन डू फॉर अ गेस्ट, गेस्ट के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। एश्योरेंस अबाउट द एकोमोडेशन, गेस्ट के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि एश्योरेंस अबाउट द एकोमोडेशन, गेस्ट को एश्योरेंस मिलता है कि उसको रूम मिलेगा, ताकि गेस्ट को बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। पहले से रिजर्वेशन करके जाने से क्या होता है, गेस्ट विल एश्योर टू गेट एन एकोमोडेशन। चॉइस ऑफ एकोमोडेशन, गेस्ट आराम से अपना चॉइस से एकोमोडेशन चूज़ कर सकता है, लाइक टाइप्स ऑफ रूम, स्वीट, एज़ पर द व्यू, एज़ पर द प्रेफरेंस। अगर पहले से रिजर्वेशन नहीं करके जाएगा तो इतना चॉइस उनको मिलेगा नहीं, ठीक है। रिसीव ए कॉरस्पॉन्डेंस एट द होटल एड्रेस, जितना दिन के लिए बुकिंग होगा उतने दिन तक एक होटल का एड्रेस मिलेगा, एक एड्रेस मिलेगा, कॉरस्पॉन्डेंस, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिजर्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, 3 तरीके का रिजर्वेशन होता है। इट कैन बी टेंटेटिव, इट कैन बी कन्फर्म्ड, इट कैन बी वेट लिस्टेड। 3 तरीके का रिजर्वेशन होता है। इट कैन बी टेंटेटिव, इट कैन बी कन्फर्म्ड, इट कैन बी वेट लिस्टेड। कन्फर्म रिजर्वेशन में गारंटीड और नॉन गारंटीड होता है। अब हम इसमें डिटेल में चर्चा करेंगे कि टेंटेटिव रिजर्वेशन क्या होता है। टेंटेटिव रिजर्वेशन मतलब तत्कालीन, ठीक है, मतलब कुछ समय तक आपको जो रूम है वो टेंटेटिवली रखा जाएगा। मान लीजिए आपको एक कट ऑफ डेट दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको दिसंबर के लिए बुकिंग करना है। सपोज यू वांट टू बुक अ रूम फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, एग्जांपल। अभी दिसंबर बहुत दूर है, चलो उतना दूर नहीं, सपोज यू वांट टू बुक अ रूम फॉर द मंथ ऑफ मे। तो मई अभी तक 2 महीना बाकी है, अभी मार्च चल रहा है। तो आपने क्या किया, आपने होटल को फ़ोन करके एक बुकिंग डाला, बोले कि आपको 5 मई से 8 मई तक 2 रूम बुक चाहिए। तो होटल क्या करेगा, आपको वो रूम बुक करके उसका रिजर्वेशन वाउचर आपको जनरेट करके दे देगा। देने के साथ आपको वो लोग एक कट ऑफ डेट प्रोवाइड करेगा।
ठीक है, मान लो कि मई का बुकिंग है। अब एज पर द कैंसिलेशन पॉलिसी ये होता है, वो लोग एक कट ऑफ डेट प्रोवाइड करता है। कट ऑफ डेट मतलब मान लो मई का बुकिंग है 5 तारीख का, तो वो लोग बोलेगा कि सर अभी आपको अप्रैल का 5 तारीख से पहले पहले आपको इस बुकिंग अमाउंट पेमेंट करने पड़ेंगे। अगर आप 50% एटलीस्ट पेमेंट करने का सक्षम होते हैं तो जाके जो है आपका बुकिंग हम कंफर्म रिजर्वेशन में डाल देंगे। तब तक आपका बुकिंग जो है वो टेंटेटिव है। टेंटेटिव मतलब परमानेंट नहीं, टेंटेटिव, कुछ समय के लिए आपका रूम बुक्ड है, ठीक है, लेकिन वो समय के बाद आपको उस रूम का पर्याप्त पेमेंट जो है उसको करना पड़ेगा। अगर आप कर लिए तो वो बुकिंग जो है यही रिजर्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा आपका कंफर्म रिजर्वेशन के गारंटीड रिजर्वेशन में। अगर आपने नहीं डाल पाए तो वो कट ऑफ डेट में वो बुकिंग ऑटोमेटिकली रिलीज मतलब सिस्टम से कैंसिल हो जाएगा। तो जैसे कि आपने 5 मई का बुकिंग करना है, आपको 5 मई का बुकिंग करना है, तो आपको आज आप फ़ोन किए तो 5 मई से 8 मई तक तो आपको अप्रैल 5 का समय दिया जाएगा। दैट विल बी योर कट ऑफ डेट। उस डेट के अंदर आपने अगर पेमेंट नहीं किए तो आपके बुकिंग जो है कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बता रहा है इट इज़ अ रिजर्वेशन रिक्वेस्ट दैट ए प्रोस्पेक्टिव गेस्ट मेक्स ऑन टेंटेटिव बेसिस फॉर ए पर्टिकुलर स्टेटस। द होटल holds the room for the guest till a cut-off date by which guest should confirm the reservation. Upon confirmation from the guest, the hotel charge tentative reservation to confirm the reservation, otherwise the cancel on the update the record accordingly. यही आपने बताया कि होटल जो है आपको बुक तो कर देगा, लेकिन उसके साथ आपको एक टेंटेटिव कट ऑफ डेट देगा। उस डेट के अंदर आप अगर आपके रिजर्वेशन को विद द पेमेंट के माध्यम से आप उसको कंफर्म नहीं किए तो आपका बुकिंग जो है तुरंत जो है वो उसको कैंसिल कर देंगे और इट विल बी ऑटोमेटिकली कैंसल्ड। अब आता है वेट लिस्टेड रिजर्वेशन। व्हाट डू यू मीन बाय अ वेट लिस्टेड रिजर्वेशन? वेट लिस्टेड रिजर्वेशन का मतलब होता है जैसे कि ट्रेन में होता है कि बुकिंग के लिए आपका कोई जगह नहीं है। मान लीजिए आपने एक बुकिंग डालने के लिए बोला है, वही एग्जांपल ले लेते हैं। 5 तारीख से 8 तारीख मई का आपने एक बुकिंग डालने के लिए बोल दिए होटल को। सपोज वी हैव गिवन अ डेट ऑफ 5 मई टिल 8 मई, लेकिन 5 से 8 में आपका डिज़ायर्ड कैटेगरी जो है वो रूम अवेलेबल नहीं है। उस केस में होटल आपके बुकिंग को वेट लिस्ट में रख सकता है। वेट लिस्ट में रखेगा तो आपको बोलेगा कि सर हमारा बुकिंग पूरा कंफर्म्ड है, कोई मौका नहीं है, फिर भी आपके बुकिंग हम वेट लिस्ट में रखते हैं इतना दिन तक। उसके बाद अगर कोई कैंसिलेशन आपके बुकिंग के डेट में होता है तो तुरंत आपका बुकिंग जो है उसमें कंफर्म्ड हो जाएगा। क्या लिख रहा है? ए रिजर्वेशन इज वेट लिस्टेड व्हेन द रिक्वेस्ट कैटेगरी रूम इज़ नॉट अवेलेबल फॉर ए रिक्वेस्टेड डेज। यही बोला है कि 5 से 8 मई तक अगर आपके पास वो पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ रूम अगर अवेलेबल नहीं होगा तो वेट लिस्टेड रिजर्वेशन आपको करनी पड़ेगी। वेट लिस्टेड रिजर्वेशन इज ए कन्फर्म्ड व्हेन द रूम रिसीव ए कैंसलेशन रिक्वेस्ट फॉर ए रूम ऑफ द सेम कैटेगरी। यही हमने बोला कि अगर उस रूम का कोई कैंसलेशन आता है तो जाके वेट लिस्टेड रिजर्वेशन जो है वो कंफर्म में जाएगा। दिस वे the hotel ensures that its room will not remain vacant in case of cancellation. तो ये ऐसे करके वेट लिस्टेड रिजर्वेशन करके गेस्ट होटल क्या इंश्योर करता है? मान लो होटल के पास 100 रूम है तो 5 से 8 मई तक 100 के 100 रूम बुकड है, लेकिन उसमें से हो सकता है कोई टेंटेटिव है, हो सकता है वो कैंसिल हो गया, तो होटल क्या करता है 110 रूम को बुक कर लेता है। वो 10 रूम जो है वेट लिस्टेड में रखता है। अगर 10 कैंसिल भी होता है वो उसमें ये एडजस्ट हो जाता है। समझ में आया? द होटल डज नॉट गारंटी अ रूम फॉर वेट लिस्टेड रिजर्वेशन। इट इज अंडरस्टूड दैट गेस्ट विल बी असाइंड ए रूम ओनली इन केस ऑफ कैंसिलेशन और नो शो। होटल कोई गारंटी नहीं देता है ये वेट लिस्टेड रिजर्वेशन के केस में। होटल कोई भी गारंटी वेट लिस्टेड रिजर्वेशन के केस में नहीं देता है। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है। अगर जो रूम उनको असाइन किया गया है, अगर वो रूम का रिजर्वेशन
room for waitlisted reservation, it is understood that the guest will be assigned a room only in the case of cancellation or no show. अगर उस केस में कोई रूम कैंसिल हो जाता है तो ही जाके ये वेट लिस्टेड रिजर्वेशन को कन्फर्मेशन मिलती है, अदरवाइज कोई चांसेस नहीं होता है. अब आता है कन्फर्म्ड रिजर्वेशन. कन्फर्म्ड रिजर्वेशन में क्या है? इट इज़ अ कन्फर्म्ड. नाम में ही पता चल रहा है कि आपका जो रिजर्वेशन है दैट हैज़ बीन कन्फर्म्ड. अब दो तरीके का कन्फर्मेशन होता है, एक होता है गारंटीड, एक होता है नॉन गारंटीड. गारंटीड रिजर्वेशन में क्या होता है? आपने बुकिंग के लिए मान लो 5 से 8 मई का बुकिंग करने के लिए सोच रहे थे, तो आपने बुकिंग तो कर दिए, करने के बाद आपने उसका पेमेंट डाल दिए. पेमेंट जैसे ही कर दिए, जैसे ही यू हैव डन द पेमेंट, जैसे ही आपने पेमेंट डाल दिए, उसमें तुरंत जो है आपको दैट गिवन यू आर गारंटीड. जिसमें जैसे ही आपने पेमेंट उसमें डाल दिए, ठीक है, जैसे ही आपने पेमेंट उसमें डाल दिए तो वो गारंटेड हो गया. और नॉन गारंटेड में क्या है? नॉन गारंटेड होगा जिसमें आपको 6 PM तक होल्डिंग का टाइम दिया जाएगा. गारंटेड रिजर्वेशन A guaranteed reservation is a confirmation that the hotel will hold the reserved room and not release to it any other guest even if guest doesn't arrive on time. गारंटेड रिजर्वेशन मतलब आपने पैसे दे के पेमेंट करके उसको होल्ड किए हैं. दिस रिक्वायर्स द गेस्ट टू मेक एन एडवांस पेमेंट पार्ट और फुल डिपेंडिंग ऑन द होटल पॉलिसी एंड द होटल ऑक्यूपेंसी फॉर द रिक्वेस्टेड डेट्स. आपको पेमेंट करनी पड़ेगी irrespective of whether the guest arrives or not unless the reservation is cancelled according to the hotel cancellation procedure. Guaranteed मतलब it is guaranteed that you will get the room, your booking has been confirmed, आपने पेमेंट डाल के रखे हैं. 3 तरीके से हो सकता है. एक तो हो गया प्री पेमेंट. प्री पेमेंट मतलब आपने पहले पेमेंट किया, अपना बुकिंग कंफर्म किया. दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट. मान लीजिए कोई कंपनीज के साथ जो है आपका कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है, तो उसमें क्या है, पेमेंट पहले नहीं मिलता है, लेकिन उस एग्रीमेंट के तहत आपको वो रूम उनके लिए गारंटीड रखना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल, अगर आप टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी के साथ आपने टाई अप कर लिए कि उनका जितना भी स्टाफ आएगा वो सारे आपके होटल में रुकेंगे, उसका पेमेंट जो है महीने के रुकने के बाद 1 महीने के अंदर रिलीज़ किया जाएगा. ऐसे अगर किसी के साथ आपने कॉन्ट्रैक्चुअल कर लिए तो उनका भी रूम जो है आपको कंफर्म करना पड़ेगा. तीसरा में आता है अलॉटमेंट. अलॉटमेंट मतलब मान लो कोई चार्टर्ड कंपनी हो गया, कोई कंपनी हो गया, वो अलॉट करके रखते हैं महीने में 5 रूम मुझे चाहिए, तो आप वो 5 रूम किसी और को नहीं दे सकते. दैट इज़ अ गारंटीड रिजर्वेशन. प्री पेमेंट हमने बता दिया कि प्री पेमेंट का मतलब होता है कि जहाँ पे गारंटीड रिजर्वेशन के अगेंस्ट में आपने कोई पेमेंट डालने, चाहे डिपॉजिटिंग कैश हो, कैश डिपॉजिट हो, क्रेडिट कार्ड पेमेंट हो, कुछ भी पेमेंट आप उसमें कर रहे हैं, दैट इज़ अ प्री पेमेंट. कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट हमने बताया, कॉरपोरेट हाउस हो गया, ट्रैवल एजेंट हो गया, जिसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है कि आप उनको जो है रूम्स देंगे. समझ में आ गया? कॉरपोरेट हाउस, डिफरेंट कॉरपोरेट कंपनीज होंगे. अलॉटमेंट, इट इज़ अ सेट ऑफ रूम ब्लॉक बाय ए पर्टिकुलर बाय ए कंपनी और ग्रुप. मैंने बताया कि पहले से महीने में 5 रूम ऐसे अलॉटमेंट पहले से होगा, तो उस केस में जो है आपको ये गारंटीड रिजर्वेशन जो है ये रखने पड़ेंगे. समझ में आया? अब आते हैं नॉन गारंटीड रिजर्वेशन. When a guest confirm her reservation at a hotel but does not guaranteed with a advance deposit, it is treated as non guaranteed reservation. मतलब गेस्ट बोल देता है कि हम आएंगे कंफर्म, लेकिन कोई एडवांस डिपॉजिट नहीं देते हैं. इन दिस टाइप ऑफ रिजर्वेशन होटल एग्रीज टू होल्ड द रूम फॉर द गेस्ट टिल कैंसलेशन आवर. एक कैंसलेशन होटल में आवर होता है, जनरली फिक्स्ड. नॉन गारंटेड रिजर्वेशन के लिए 6 PM 6 PM तक होता है. मान लीजिए आज ही गेस्ट आएगा, आज ही फ़ोन किया है, लेकिन वो आज रास्ते में है तो पेमेंट कर नहीं पाएगा, तो उसके लिए हमको रूम को होल्ड करना है 6 बजे तक. हमको रूम को होल्ड करना है 6 बजे तक. 6 बजे तक हम जो है उसके रूम को रिलीज़ कर दे सकते हैं. ठीक है, तो क्या है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिजर्वेशन?
रिजर्वेशन में 3 तरीके होता है, एक है टेंटेटिव, एक होता है कन्फर्म, एक होता है वेट लिस्टेड। टेंटेटिव मतलब आप गेस्ट को एक कट ऑफ डेट देते हैं, गेस्ट चाहता है कि इस डेट तक, इस डेट में बुकिंग करेगा, तो उसको आप इमीडिएट रूम तो बुक कर दिए, बुक करने के बाद गेस्ट को एक कट ऑफ डेट दे दिए, तो उनको बता दिए कि आपको इस डेट से इस डेट के बीच में जो है आपको पेमेंट करने हैं, अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो आपका बुकिंग जो है उस पर्टिकुलर डे में कैंसिल हो जाएगा। तो टेंटेटिव रिजर्वेशन हैव ए कट ऑफ डेट। वेट लिस्टेड रिजर्वेशन मतलब जैसे ट्रेन में होता है, वेट लिस्टेड रिजर्वेशन इज़ अगेंस्ट कैंसलेशन, मतलब आप ऐसा दिन में ऐसा रूम देख रहे हैं जो उस दिन होटल में अवेलेबल नहीं है। होटल वाला क्या करता है, उस समय आपके बुकिंग तो ले लेता है, लेकिन आपको संग संग ये भी बता देता है कि आपके रूम जो है इट विल बी वेट लिस्टेड जब तक उस पर्टिकुलर डे में कोई कैंसलेशन या फिर कोई नो शो का मतलब होता है कि अराइवल होने के दिन में गेस्ट होटल में आया नहीं, उसको नो शो बोलते हैं। कोई कैंसलेशन या फिर कोई नो शो नहीं होगा तब तक जो है आपका बुकिंग जो है वेट लिस्टेड में होगा, दैट इज़ अ वेट लिस्टेड। फिर आता है कन्फर्म। कन्फर्म में 3 तरीके का होता है, एक होता है गारंटीड, एक होता है नॉन गारंटीड। गारंटीड रिजर्वेशन जो है उसको तो आप प्री पेमेंट देके कर सकते हैं, उसको आप अलॉटमेंट देके कर सकते हैं, उसमें आप कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट कर सकते हैं। प्री पेमेंट का मतलब क्या हो गया, प्री पेमेंट का मतलब हो गया कि आपने पहले से ही पेमेंट करके बुकिंग कर दिए, तो इट इज़ प्री पेमेंट, आपका बुकिंग डन हो गया, योर बुकिंग इज़ कन्फर्म। अच्छा, फिर कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट मतलब कोई कॉरपोरेट कंपनी के साथ आप अगर एग्रीमेंट किए, ठीक है, कि आपको इतना रूम देना पड़ेगा, इतना कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट के साथ किए, दैट इज़ ए कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट। फिर अलॉटमेंट, कोई कंपनी के साथ आपका एक पर्टिकुलर रूम का अलॉटमेंट्स होंगे, ठीक है ना, दैट अलॉटमेंट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्चुअल अलॉटमेंट। फिर आता है प्री पेमेंट, ये तो हमने बताया, कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट एंड अलॉटमेंट। फिर आता है नॉन गारंटीड। नॉन गारंटीड रिजर्वेशन होता है 6 बजे तक, 6 PM होल्डिंग होता है उसका, वॉक इन गेस्ट 6 PM होल्डिंग, ठीक है, गेस्ट रास्ते में हो रहा है, बता रहा है हम आएंगे, लेकिन पहुंच नहीं पाता है, 6 बजे तक उसका रूम को होल्ड करते हैं, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ अ मोड्स ऑफ रिजर्वेशन। मोड्स, 2 तरीके का मोड है, एक होता है रिटेन मोड, एक होता है वर्बल मोड। मोड मतलब किस माध्यम से आपके पास रिजर्वेशन पहुंचेगा, दैट इज़ द मोड ऑफ रिजर्वेशन। इट माइट बी ऑन ए रिटेन मोड, इट माइट बी ऑन ए वर्बल मोड। रिटेन मोड में आता है लेटर, फैक्स, टेलेक्स, ईमेल। रिटेन मोड में आता है आपका लेटर, फैक्स, टेलेक्स, ईमेल, एंड वर्बल मोड में आता है इन पर्सन एंड टेलीफोन। रिटेन मोड में मतलब लेटर, आप लेटर दे के होटल में लेटर भेज के उसके रिजर्वेशन के इंतज़ाम करवा सकते हैं, फैक्स के माध्यम से भेज सकते हैं, टेलेक्स पहले का ज़माने में हो सकता था, और ईमेल तो अभी होता है। वर्बल मोड आइदर आप इन पर्सन चले गए और टेलीफोन में बात किए। मोड्स ऑफ रिजर्वेशन, रिटेन मोड एंड वर्बल मोड। रिटेन मोड मतलब जो रिटेन, ठीक है, व्हेन ए रिजर्वेशन रिक्वेस्ट रीच इन द होटल इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग। एडवांटेज क्या है, द रिटेन मोड और रिजर्वेशन आर वेरी क्लियर, अनएम्बिगियस and provide a written record to the hotel which is referred to as any case of miscommunication or confusion। अगर रिटेन मोड में आप कोई रिजर्वेशन भेजते हैं कोई होटल में, तो ये कंफर्म हो जाता है कि देयर शुड बी नो मिसकम्युनिकेशन, क्योंकि इट्स रिटेन बाय द गेस्ट ओनली, ठीक है। तो रिटेन रिकॉर्ड का, रिटेन मोड का, रिटेन रिजर्वेशन का एकदम प्रॉपर, विदाउट मिस इंटरप्रिटेशन, कोई एम्बिग्यूटी कुछ नहीं होता है, इट्स वेरी क्लियर कट कम्युनिकेशन, ठीक है। इसीलिए रिटेन मोड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द क्लासिक मोड। बहुत तरीके का होता है, लेटर, फैक्स, टेलेक्स, ईमेल, बट आम तौर पे अभी जो है वो ईमेल का ज़माना है तो ईमेल चल रहे हैं। लेटर कुछ इस प्रकार का है कि आई एम राइटिंग टू मेक ए रिजर्वेशन एट योर होटल इन द नेम ऑफ दिस 6 PM बीच एन्जॉय टू सम, पूरा ऐसे जैसे लेटर लिखा जाता है, बिल्कुल ऐसे लेटर लिखा जाएगा। आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो, दिस इज़ अ लेटर
which a guest can write to book a reservation. फिर आता है रिटेन मोड लेटर, बिल्कुल इस तरीके से ही होटल से कंफर्मेशन लेटर जाता है. रिटेन मोड फैक्स, फैक्स के माध्यम से यह होता है, फैक्स मशीन लगा होता है, तो इस फैक्स मशीन के माध्यम से जो है आप लोग भेज सकते हो. रिटेन मोड टेलेक्स, टेलेक्स का ज़माना अभी तो है नहीं, चला गया, बट फिर भी टेलेक्स में भी भेजा जा सकता था. रिटेन मोड ईमेल, दिस इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड मोस्ट यूज्ड रिटेन मोड एवर. ठीक है, रिटेन मोड एंड वर्बल मोड दो ही तरीके से होता है रिजर्वेशन. रिटेन मोड में आपका लेटर हो गया, टेलेक्स हो गया, फैक्स हो गया, ईमेल हो गया. तो ईमेल में दिस इज़ द थिंग कि आपको ईमेल जो है, ऐसे ईमेल भेजा जाएगा. तो ईमेल ही जो है आजकल के ज़माने में सबसे ज़्यादा चलता है. ठीक है, ईमेल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. अब आते हैं वर्बल मोड. अगर आप वर्बल मोड की बात करें, ठीक है, वर्बल मोड में दो तरीके होते हैं. वर्बल मोड मतलब वो गेस्ट के वॉइस सुनाई देगा, इट इज़ द वर्बल मोड थ्रू ओरल कम्युनिकेशन. इसमें रिटेन मोड से इसका सबसे डिसएडवांटेज ये है, रिटेन मोड एक्चुअली टाइम टेकिंग है. ठीक है, आप देंगे, वहाँ से जवाब आएगा, तो ये बहुत टाइम टेकिंग है. बट वर्बल मोड में टाइम सेविंग होता है. आप तुरंत किसी से बात करेंगे, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा एंड यू कैन बुक. तो वर्बल मोड इज़ मोर ईजियर प्रोसेस एंड फास्ट प्रोसेस. बट इसमें क्या प्रॉब्लम है, रिटेन मोड में कोई एम्बिग्यूटी, कोई मिसकम्युनिकेशन, कोई मिस इंटरप्रिटेशन होने का चांसेस कम होता है, बिकॉज इट्स कम्प्लीटली रिटेन बाय द गेस्ट एंड एविडेंशियल डॉक्यूमेंट हो जाता है. बट वर्बल मोड में आपको गलती होने का चांस होता है, आपको मिसकम्युनिकेशन होने का चांस होता है. गेस्ट को बोलेंगे डबल रूम, वो सुनेगा डिलक्स रूम, तो उस केस में एम्बिग्यूटी, मिस इंटरप्रिटेशन, मिसकम्युनिकेशन हो सकता है. बहुत तरीके से आ सकता है. इन टेलीफोन बाय पर्सन, टेलीफोन मतलब गेस्ट को फ़ोन करके आप पूछेंगे तो दैट इज़ अ टेलीफोन हो जाएगा. और इन पर्सन मतलब खुद अगर आप उसको पूछ रहे हैं तो दैट इज़ अ इन पर्सन. समझ में आ गया? तो दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट वी हैव लर्न टुडे. वी हैव नोन दैट व्हाट इज़ अ रिजर्वेशन. रिजर्वेशन इज़ बेसिकली बुक्ड अ रूम फॉर ए पर्टिकुलर डे ऑफ टाइम इन अ होटल बाय ए प्रोस्पेक्टिव गेस्ट, दैट इज़ अ रिजर्वेशन. ठीक है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ रिजर्वेशन हमने पढ़े. होटल के लिए क्या इम्पोर्टेंस है कि होटल का बिजनेस बढ़ता है, अदर डिपार्टमेंट का रेवेन्यू बढ़ता है, फर्स्ट इंप्रेशन होता है, गेस्ट के लिए एक एड्रेस मिल जाता है, गेस्ट आराम से रिजर्वेशन मैंने बुकिंग का चिंता छोड़ के बैठ सकता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूम मिल सकता है. उसके बाद मोड्स, टाइप्स ऑफ रिजर्वेशन, कन्फर्म्ड, गारंटीड, नॉन गारंटीड. टेंटेटिव मतलब कट ऑफ डेट, एक डेट दिया जाएगा उसके अंदर आपको कंफर्म. वेट लिस्टेड मतलब कैंसिलेशन के अगेंस्ट में, अगर कैंसिलेशन होता है तो ही बुकिंग का रूम मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा. कंफर्म मतलब दो तरीके का, गारंटीड, नॉन गारंटीड. अगर गारंटीड है तो इट्स कंफर्म्ड. प्रीपेमेंट हो सकता है, अलॉटमेंट हो सकता है, कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट के तहत हो सकता है, तो दैट इज़ गारंटेड. और नॉन गारंटेड मतलब आपको 6 PM तक बुकिंग को होल्ड करना है. यही हमने पढ़े थे. इसके बाद व्हाट वी हैव नोन द मोड्स ऑफ रिजर्वेशन, रिटेन मोड एंड द वर्बल मोड. अगर रिटेन मोड है, रिटेन मोड इज़ द बेस्ट मोड, क्योंकि बट इसका टाइम टेकिंग, बहुत सारा टाइम लग जाता है. टेलेक्स, फैक्स, ईमेल, लेटर, अभी ईमेल ज़्यादा इस्तेमाल होता है. वर्बल मोड आइदर इन पर्सन और टेलीफोन में. समझ में आया? On the next class, we will discuss the system of reservation. We'll learn the sources of reservation, and we'll also learn the various system of reservation. Okay, and the system, manual, automatic, diary, reservation. So this all kind of system and source of reservation we will learn. Okay.
Thank you.